So now, as you can see, I have multiple files here, right? Can you see ISE Project Navigator? Means the software for the FPGA. Yes, sir. Okay, so here you can Yes, see sir. no or yes. Yes, sir. Oh, yes, yes. Okay. So here, as you can see, I have a project called G1 underscore phi, which is located in a folder called G1 underscore phi, which is located in a folder called phi, which is located in a folder namely Xilinx practice under the D drive. Okay. So this is name of project. G1 underscore phi is the name of project. And for this project, we have selected a Xilinx FPGA XA6LX4, which is Spartan 6 base FPGA. And under this project folder, the virtual folder, I have two main files, or underscore TB and rough. So right now I am not compiling the rough. I am just compiling the or TB, and inside the or along with the or TB, I have another file G11. Actually speaking, G11 is the actual file, right? Where I am coding. So this coding was taught to you in the last lecture. I have again modified it. So we can again write down some 5 2 instructions here. But just in the morning, I have modified it to a simpler one, that is G less than equal to, means not less than equal to, equals to. G equals to A and B. So it is doing ending of two informations A and B, where information A and B are of bit type. So either it can be 0 or it can be 1, and depending on the ending operation, it will produce the output and will give it to the bit type information G, which will be updated or which is to be updated on the output pin of the FPGA. So for this project, at least you should have 3 numbers of pin. 2 out of them should be configured as an in bit, and 1 out of them is to be configured as an out bit. Okay. And of course, if you write down A less than equal to G and B, then there can be a problem, because we will test it, right? And we will confirm it, because theoretically this is out bit, right? So you can write it into the out bit, but you cannot take input from the out bit. It's a natural thing. There is something called in out bit. So it's possible with that. Means if a pin is configured as in out pin, then you can read it from that pin, as well as you can write it also. But you know that all the pins are configured as either purely in pin or purely out pin, and that's why if I write down A equals to G and B, it should give me error. We will be testing it later. Just concentrate right now on the current code I have written over here, right? So this commented lines are generated, these informations are generated by the compiler itself, means the Xilinx ISE itself. So if you don't like to see this, then you may remove it also. No problem at all, right? Let it be here right now. And now I have another file. So this is my main file, right? G1 underscore 1 is my main file, and I have another file, or underscore TB, or underscore TB. So TB stands for test bench, and it's not compulsory to name like this, or underscore TB. Name can be anything, but with the rules we understand, right? That there should not be any space, or it should not start from the number, etc., etc. So ultimately, I have this another file, which is the test bench file. So how to generate it? Just go to the new source, right, and click on the where is it? Yes, VHDL test bench, right, and then give some name here, and then when you click on the next, it will ask you to associate the file with
either of the main file, as this folder do have two numbers of main files, g1 underscore 1 and rough, right? So it will ask that whether I should add it with the g1 one or whether I should add it with the rough. So you need to select g1 underscore 1 because your codes are right now in the g1 underscore 1, okay? And then when you finish the process by clicking on next or save or whatever will be displayed to you, finally it will be added like this. Means on the top you will have the test file, and and along with that you will have the main file. So it means that now I am going to test my main file, that is g1 underscore 1 right now. I am going to test this g1 underscore 1 file by the use of or underscore tb file. By the use of or underscore tb file. Is it clear to you? Is it clear to you? Hello. Yes, sir, but how is this or underscore TB's content is generated? Yes, there's still remaining to discuss. But first, let me know that are you clear with something I have just said, that we are going to test g1 underscore 1 by use of or underscore tb. How to generate means how to write down the code for the same, that is still pending to discuss with you. But are you comfortable to believe that we can have a file to test another file? એવું બરાબર છે ને? એવું મનમાં બેસે છે ને તમને શું કહું છું તે? યસ સર. હા બરાબર. Yes, sir. હા, એટલે બિલીવ કરવું જ પડે, કારણ કે જે કંઈ પણ વસ્તુ કરી શકાય બાય પ્રોગ્રામિંગ. યુ કેન ડુ એનીથિંગ, ઓલમોસ્ટ એનીથિંગ. It just need to program like that, whatever our wish is, right? So this software is supporting the facility called test bench, and by selecting, by using that facility, we can test our code. So how my code should behave? Let me check it once. This is my code. So how it should behave? Don't go with the name. I have given the name or underscore tb, but if you read the code, I am actually doing ending And operation operation. between two signals, right? So initially when we created this file in a lecture or before or last to last lecture, then we have simulated the file by manually giving the inputs, by forcefully setting the A to logic level 1 or 0, and similarly setting the B to logic level 1 and 0, and accordingly we would running the file and was getting the output necessary, right? ग्रीन कलर के सिग्नल्स आ रहे थे, याद है ना सबको? यस सर. Yes, sir. यस सर. बराबर. तो यहाँ पे हमको वो खुद से नहीं करना पड़ेगा, बराबर. जो हम राइट क्लिक करके जो फोर्स द कांस्टेंट टू फोर्स द सिग्नल टू कांस्टेंट, ऐसा ऑप्शन पे क्लिक करके जो हम 1 और 0 करते थे. नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दोस डेटा? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दोस डेटा? हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस दोस डेटा? Test bench. Yes, yani or underscore tb is supposed to generate those data. Or underscore tb should be written such that it will produce those data. Okay, is it clear to you? यस सर. यस सर. Okay, then let us have a look to this file. So similar to the main file, first I have added the libraries. Library IEEE use IEEE dot standard logic 1164 dot all. I have not generated it, right? It is generated by the software, but if I ask you in the examination, you need to write it down, right? Because if some compiler is not generating this line, you will have to write it by yourself. Followed by this library, you have the entity. Okay, now you are going to test g1 underscore 1 entity. You are going to test g1 underscore 1 entity, and that's why I should write down g1 underscore 1 here. Is it clear to you? यस सर. मुझे यहाँ से जो मैं सिग्नल जनरेट करूंगा,
बराबर वो किसको देने हैं, तो इसको G1_1 को देने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम क्या लिखा, G1_1 लिखा। और खाली देने नहीं है, लेने भी है, बराबर। और गेट के लिए इनपुट में A और B दे दूंगा और उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो भी यही फाइल कलेक्ट करके सिमुलेटर को भेजेगी। तो यहाँ ये फाइल, दिस फाइल इज एक्चुअली टॉकिंग विद दिस फाइल. This file, test bench file, is going to talk with the main file. It will simulate the inputs and whatever the output will be generated, that will also be displayed by use of this file. So this file or_tb, the test bench file, is intermediate medium to simulate our code. Okay, so clear? खबर पड़ी क्या बताने? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's see. So as you know, I have two inputs and one output and type is beat. So I have used A, B and G. Okay. I have used similar name, right? I have used similar name A, B and G, and we will try to use different name and we will see what will happen. But right now it is similar name. A and B is input. It is same name, right? The inputs are of same name. Similarly, output is also of the same name. But we will test it with the different name. Okay. So now entity is to be ended. That's why end G1_1. Then Sir. architecture. Yes. Sir, after that, in bit, Yes. Sorry. So I have declared it with the constant 0. I have declared it with the constants 0. This is a way how you can initialize the beat. So when the debugger, means when the test bench will be started, it should have some input. That's why initial value are required to give, right? That's why A and B are initialized with the inputs to be 0 logic and output is also forced to the 0 logic. Is it clear? yes, sir. Okay. So please remember the way how it can be initialized. पहले क्या लिखना पड़ेगा, जेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल टू। देखो हमारे यहाँ सारे नॉमेनक्लेचर्स या जो भी सिंबल्स हम यूज कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग में उससे थोड़े अलग है, बराबर। जैसे कि यहाँ G इक्वल्स टू एंड बी है तो सी में हम G इक्वल्स टू ही लिखते हैं और एंड के लिए सिंबल है, जबकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू है। और वापिस आप देखोगे कि लेस देन इक्वल टू की जगह कुछ जगह पे इक्वल टू ग्रेटर देन भी होता है, तो वो देखते हैं कब क्या होता है। लेकिन चीजें एग्जैक्ट सी जैसी नहीं है, वो आपको याद रखनी है, बराबर। एंड डोंट मिक्स इट अप विद द सी लैंग्वेज। ओके, सो नाउ as you know, I have ended the entity. Then you need to start the architecture. That's why architecture behavior of G1_1 is. So name of architecture is बोलो क्या है? Behavior of G1. यस, बिहेवियरल, बराबर। जो भी नाम यहाँ पे दिया है वो आपको एंड करना पड़ेगा जब आर्किटेक्चर एंड होगा तब, ताकि इसीलिए मैंने यहाँ पे 42nd लाइन पे, 42 नहीं होता है, 42nd लाइन पे मैंने क्या लिखा है, एंड बिहेवियरल लिखा है। यहाँ अगर नाम जीवन लिखा होता तो यहाँ पे जीवन लिखता, बराबर। लेकिन ज्यादातर बुक के अंदर आपको ये बिहेवियरल लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द बिहेवियर, दैट्स व्हाई। ओके, सो ऑफ G1_1, yes, you cannot use any other name because you are defining the architecture for these G1_1. That's why I should have the same name here, G1_1 is. okay, is देखो स्मॉल में चलता है, यहाँ पे अगर नहीं चलता है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ये आप देख लो, कलर बदल जाएगा तो बराबर है, बराबर। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर भी स्मॉल में चलता है, एंटिटी भी चलता है, पोर्ट भी चलता है, सब कुछ स्मॉल में चलता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें जो कीवर्ड्स है वो हम कैपिटल में लिखेंगे। सारी बुक के अंदर वो कैपिटल में ही लिखा है। दिस इज फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, राइट? अदरवाइज यू शुड राइट इट डाउन इन द कैपिटल। ओके, तो
चलो एक काम करो, एग्जाम में भी स्मॉल ही लिखो, क्योंकि वो लिखना एग्जाम के लिए एग्जाम में दिक्कत वाला हो जाएगा कैपिटल में, बराबर। एक एक एग्रीमेंट करो, क्या लिखना है बोलो, स्मॉल या कैपिटल? हेलो बोलो, सर कैपिटल। एग्रीमेंट कैपिटल लिखोगे, अच्छा तो सब कैपिटल कैपिटल फॉलो करोगे, बराबर। जितने भी कीवर्ड्स है वो कैपिटल होने चाहिए। देन बिगिन, ओके सर। बराबर। मैंने क्यों पूछा, क्योंकि बुक में देखोगे तो बुक की तरह आपको तरह लिखने की कोशिश करोगे, बराबर। फिर यानी यहाँ देखोगे तो इस तरह के लिखने की कोशिश करोगे, तो फिर अल्टर नहीं हो जाना चाहिए एग्जाम में। या तो सारे कैपिटल सबके एक जैसे ही होने चाहिए, बराबर। चोरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबकी प्रोसीजर एक होनी चाहिए, ये बोल रहा हूँ। तो आर्किटेक्चर अगर तुम कैपिटल में लिख रहे हो तो बाकी दोनों को भी कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ओके, हेलो, यस Yes, यस sir. सर यस। Yes, sir. ओके ओके। सो यहाँ आर्किटेक्चर के बाद क्या आएगा, बिगिन आएगा। ऐसा मत सोचो कि आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में कुछ नहीं होता है, अभी तक जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा है। हमारे बाद के डिस्कशन के अंदर धीरे धीरे ये शुरू होता जाएगा। तो बिगिन, बिगिन के बाद क्या है, जी इक्वल्स टू, नाउ आई विल रीड इट एज इक्वल टू, बराबर। जी इक्वल्स टू ए एंड बी एंड बिहेवियरल, बराबर। ये हमारी कौन सी है, मेन फाइल है। मैंने वापस मेन ही पढ़ी, मुझे ये क्या चाहिए था, और टीबी चाहिए था, ये चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी लाइब्रेरी वैसे ही हमने डाली जैसे मेन फाइल के अंदर थी। उसके बाद एंटिटी मैंने बनाई, एंटिटी और टीबी। अभी यहाँ पे ये दूसरी एंटिटी है, उसको उसके ऊपर मैप करना है। यहाँ पे एंटिटी का नाम देखो अलग है, बराबर। यहाँ पे एंटिटी का नाम अलग है, तो मुझे उसको उसके ऊपर मैप करना है, तो और अंडरस्कोर टीवी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं UUT जो है उसके अंदर मैं अलग नाम यूज नहीं कर सकता हूँ। UUT का फुल फॉर्म लिखो, U stands for unit, first U stands for unit, second U stands for under, T stands for test, unit under test। लिख लिया? यस हेलो, सर। लिख लिया, बराबर। अभी देखो इसका कलर नहीं बदलता है, लेकिन ये भी एक कीवर्ड है और ये स्मॉल में ही होना चाहिए, UUT, बराबर। तो ये UUT आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये टेस्ट बेंच में देखने को मिलेगा, बराबर। वो मेन फाइल में कभी नहीं आएगा। यानी आप अपने हिसाब से किसी को UUT नाम दो, वो अलग बात है, लेकिन बाकी कीवर्ड की तरह नहीं आएगा। तो UUT कौन सा है, डिवाइस अंडर सॉरी यूनिट अंडर टेस्ट कौन सा है, G1_1 है। G1_1 को हमको डेटा भेजना है ना, इसलिए यहाँ पे दूसरा नाम नहीं चलेगा, G1_1, बराबर। और यहाँ पहले सीक्वेंस में देखते हैं, चलो इधर उधर हो जाएगा। लाइब्रेरी ऐड की, फिर एंटिटी बनाई, और एंटिटी और अंडरस्कोर टीबी एंड और अंडरस्कोर टीबी। क्यों यहाँ पे हमने एंड कर दिया, एंटिटी को क्यों एंड कर दिया, कोई बोल सकता है? अंदर हमने कुछ फॉल्ट डिफाइन नहीं किए, हमने इसको एंड कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया हो सकता है? मैंने अभी बोला नहीं है इसका रीजन, लेकिन आप सोच सकते हो, कोई आइडिया आपको, ऐसा क्यों किया? बीच में कोड लिखने की जगह पे, बराबर, वो पॉट वगैरह होता था ना, डायरेक्टली मैंने उसको एंड कर दिया, ऐसा क्यों किया? I am not supposed to create any other entity in my actual circuit. This is just an empty or virtual entity going to test this G1_1. That's why I don't need any code inside this. Are you clear with this? Say yes or no. मुझे इसको लेके कुछ करना नहीं है, लेकिन एंटिटी के बगैर हमारा काम चल नहीं सकता है, इसलिए शुरू किया और एंड कर दिया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ओके। अभी Yes. ये, हाँ, अभी अभी ये जो है उसके अंदर
ये एंटिटी के अंदर मुझे बिट्स चाहिए, बराबर, ये वर्चुअल एंटिटी है, तो यहाँ पे भी मुझे बिट्स चाहिए। ये पोर्ट वगैरह में यहाँ ना लिखकर मैंने आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन किया, ये इसके लिए वैलिड है, बराबर, इसके लिए, ये टेस्ट बेंच के लिए। बाकी किसी जगह पे इस तरह से मत लिखो। क्या लिखा है, कंपोनेंट G1_1। कौन सा कंपोनेंट में टेस्ट कर रहा हूं, तो G1_1 टेस्ट कर रहा हूं, इसलिए कंपोनेंट के साथ मैंने क्या लिखा, G1_1 लिखा। फिर A, B और G तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो मैं जनरेट करने वाला हूं, इसलिए मैंने A, B और G ले लिया। नाम चाहे अलग हो, हम अलग नाम से टेस्ट करेंगे, लेकिन मुझे 3 सिग्नल चाहिए थे, बराबर। 2 भेजने हैं, 1 को लेना है, तो 2 को मैंने इन कर दिया और 1 को मैंने आउट कर दिया, और तीनों का टाइप हम जानते हैं, उस तरह से बीट होना चाहिए। अभी ये कंपोनेंट मैंने जो शुरू किया था वो मुझे एंड करना पड़ेगा, तो एंड कंपोनेंट। अभी इसकी इनिशियल वैल्यू मुझे देनी है, तो इनिशियल वैल्यू मैं किसके लिए दूंगा, बराबर। मैं उस फाइल में उस वजह से ही गड़बड़ हो गया कि मैंने अगली बार आपको ये इनिशियलाइज कैसे करना है वो मैंने नहीं दिखाया था, तो मैंने जब वो फाइल देखी तब मुझे लगा कि मैं यही फाइल रीड कर रहा हूँ, हालांकि वो फाइल दूसरी थी। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? पहले मैं जो पूरा एक्सप्लेन कर गया वो मेन फाइल थी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस। बराबर। तो Yes, ये मेरी कौन सी फाइल है, टेस्ट बेंच की फाइल है। प्लीज बी क्लियर विद दिस, राइट। तो अभी उसको मुझे इनिशियलाइज करना है। हाँ बोलो સર આમાં ઇનપુટ બે ને કેમ અલગ અલગ લાઈનમાં એકમાં ના ચાલે? પોર્ટમાં જે ઇનિશિયલાઇઝ કર્યા છે. ચાલે ચાલે, એ પણ ચાલે, બરાબર। A, B પછી જેમ ઇન બીટ લખી શકાય, બરાબર છે। એ હમણાં તમને કરીને બતાવું છું, એ પણ કરી શકાય, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેલિડ પ્રેક્ટિસ। પણ આવી રીતે લખી દીધું એમ, આમાં છે ને તે અલગ અલગ રીતે લખવાથી આપણો કોન્ફિડન્સ વધે અને અલગ અલગ રીતો ખબર પડે, એટલા માટે આપણે આવી રીતે કરવાનું, બરાબર। હમણાં હું તમને આ પોર્ટ અહીંયા એન્ટિટીમાં પણ મૂકીને બતાવીશ, એટલે કેટલીક વસ્તુઓ હું બોલીશ નહીં ને કરીને બતાવીશ, એટલે તમને ખબર પડશે કે થશે કે નથી થતું, બરાબર। અને પછી એ વસ્તુ કાયમ માટે મગજમાં રાખી લેવાની। ઓકે, સો નાઉ here I have provided the initial information to the inputs A and B, but output should not be initialized because output is a dependent thing. Output is dependent on the input, right? That's why I should not initialize the output. Are you clear with this? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. That's why I have ended over here, बराबर। फिर क्या है देखो, फिर ये आर्किटेक्चर को बिगिन करना पड़ेगा, बराबर। तो इसमें क्या लिखा है देखो, बिगिन 2 बार है, बिगिन यहाँ पे 2 बार है, और एंड देखो, एंड भी 2 बार है। एक बार क्या है, एंड प्रोसेस है, एक बार एंड प्रोसेस है, तो ये किसके लिए है, ये इस बिगिन के लिए है। और दूसरी बार क्या है, सिंपली एंड है, बराबर। तो वो किसके लिए है, इसके लिए है। ये पहला जो एंड प्रोसेस है वो अंदर की लूप के लिए, यानी कि इसके लिए है, बराबर। ये मेरा जो प्रोसेस लिखा हुआ है उसके लिए है। देखो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, बराबर। पहला एंड, अगर ये इफ लूप होता तो करली ब्रैकेट यहाँ पे रखते और दूसरा करली ब्रैकेट यहाँ पे रखते, तो स्वाभाविक ये एंडिंग करली ब्रैकेट की जगह पे ये एंड प्रोसेस आएगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट का कंसेप्ट नहीं है, वो हम आगे बात कर गए हैं। और ये एंड किसका है, ये इस बिगिन का है, बराबर। तो यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर एंड होता है। अभी इसके अंदर देखिए, UUT यानी यूनिट अंडर टेस्ट के अंदर किसको टेस्ट करना है, G1_1 को करना है। तो अभी उसका मैपिंग मुझे इसके साथ करना पड़ेगा। तो ए की इंफॉर्मेशन ए में भेजनी है, इसका मतलब ये होता है इसकी ए की इंफॉर्मेशन मुझे इसके ए में इसके ए की इंफॉर्मेशन मुझे इसके किसके मेन फाइल के ए में भेजनी है, बराबर। इसी तरह से इसके बी की इंफॉर्मेशन यानी टेस्ट बेंच के बी की इंफॉर्मेशन मुझे इसके बी में भेजनी है, और इसी तरह से जी में, बराबर। जी में भी डायरेक्शन यही आएगा, बराबर, लेकिन वहां से मुझे लेकर इसके जी में भेजना है। अभी हम दोनों के नाम बदल के भी ट्राई करेंगे कि ये होता है कि नहीं, बराबर। लेकिन यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं
मेन फाइल का कहाँ लिखूंगा, लेफ्ट हैंड राइट या राइट हैंड साइड पे लिखूंगा? मेन फाइल का वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा या राइट हैंड साइड पे आएगा आउटपुट के लिए? राइट हैंड लेफ्ट साइड। हैंड साइड पे। दिस इज आउटपुट, राइट? नहीं, आउटपुट मुझे यहां से लेके यहां के वेरिएबल में भेजना है, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। आउटपुट मुझे G1 में से रीड करके इसके जी में भेजना है। सो इसका जी जो है, अभी ये इसलिए ऐसा लग रहा है कि दोनों के नाम सेम है, तो ये जी जो है ये किसका जी है, इसका जी है, और ये जी जो है वो किसका जी है, वो G1 का जी है। समझ में आ गया? अभी ये ए किसका है, ये इसका ए है, क्योंकि ये इनपुट वाला है, ये इसका ए है, इसको किसके ए में भेजा है हमने, G1 के ए में भेजा है। और इसी तरह से ये किसका भी है, ये यही फाइल का यानी टेस्ट बेंच का भी है, उसको हमने G1 के बी में भेजा है। आर यू क्लियर विद दिस? से यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, फिर एक नाम दिया है स्टिमुलेट अंडर प्रोसीजर। नाम कुछ भी हो सकता है, स्टीम अंडरस्कोर प्रोक लिखा है अभी। अभी ये प्रोसेस है, प्रोसेस जो करनी है, तो एक प्रोसेस नया कीवर्ड आपको आया है, लिख के रखो प्रोसेस, बराबर। वो हम मेन फाइल में भी यूज करेंगे, बराबर। और जब टाइमिंग के रिलेटेड हमको कुछ भी करना है तो प्रोसेस पिक्चर में आएगा। टाइमिंग रिलेटेड कुछ भी अगर हमको करना है तो प्रोसेस पिक्चर में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट कोड जो है वो क्लॉक डिपेंडेंट है। अभी के कोड के अंदर हमको खाली ऑरिंग करना था तो क्लॉक की जरूरत नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट क्लॉक के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप या ऐसा कुछ बनाएंगे, उसमें हमको क्लॉक यूज करनी पड़ेगी। तो क्लॉक को हम इंटरफेस करेंगे प्रोसेस के थ्रू, बराबर। तो तब ये प्रोसेस का कीवर्ड हम मेन फाइल में भी यूज करेंगे। हालांकि अभी यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं है, लेकिन टाइमिंग मैंने यूज किया है, तो मैं प्रोसेस यूज करूंगा। तो प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस का बिगिन होगा और एंड होगा, बराबर। इट्स अ बेटर वे टू मेक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग फर्स्ट, यानी करली ब्रैकेट पहले और ओपनिंग करली ब्रैकेट और एंडिंग करली ब्रैकेट पहले लिख देना अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन वो अच्छी इसलिए नहीं है कि बीच वाले कोड कितने आएंगे अगर वो आपको मालूम नहीं है तो ये पहले नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अभी ये तो सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें तो आप यानी एंटर 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 कर सकते हो। एग्जाम देने के टाइम पे ये इतना सुटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एंटर कर सकते हो ना। तो जैसे ही आपने प्रोसेस लिखा, पहले बिगिन लिख दो और फिर एंड प्रोसेस लिख दो। ये भी बिगिन लिखा था तभी एंड लिख दो, तो यानी भूल नहीं जाओगे एंड करना। बाकी मैं खुद ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बाद में देख के कोरिलेट करके उसको एंड करता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आर यू फॉलोइंग? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। okay, now most of the lines are self explanatory, right? Even you can learn it by the book I have shared with you, बराबर। शेयर मीन्स नाम जो मैंने बताया था, आज मंथन उसको शेयर कर देगा, मंथन ने डाउनलोड की है, बराबर। तो वो शेयर कर देगा, तो यानी आप खुद से भी इसके अंदर सिमुलेट कर सकते हो। रही बात डाउनलोड करने की, सॉफ्टवेयर किसी ने डाउनलोड किया आप लोगों में से? तो 5.7 GB का सॉफ्टवेयर कौन डाउनलोड करेगा, बराबर। इसलिए अभी एक बार कॉलेज आके ले जाओ मेरे पास से, ये प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। कौन दूर रहता है यहाँ से? नजदीक में कितने हैं आप लोगों में से, आप 3 में से? सर मैं आ नजदीक? सकती हूँ कॉलेज। हाँ, बाकी 2 का क्या होगा? क्योंकि 5.7 GB का हम टीम्स के ऊपर तो अपलोड नहीं कर सकते ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। सर आप बाकी ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर सकते हैं? 5.7 GB मुझे रात को 2.5 घंटे 3 घंटा जागना पड़ा था, तब जाके मैं डाउनलोड कर पाया था। तो ड्राइव पे चढ़ाऊंगा तो भी वही चीज होगी। और मेरा कॉलेज का कंप्यूटर बिगड़ गया है, तो मैं ऐसे शाम को रख के जा नहीं सकता हूँ, बात वैसी है। तो एक बार तुम मेरे से ले लो, और उसके बाद देखो मंथन और यार तुम्हारा नाम कायम भूल जाता हूँ, अनुज। मंथन और अनुज बाद में क्या करते हैं देखते हैं। चलो ये क्या कर सकते हैं ये देखते हैं, कुछ आइडिया निकालेंगे, बराबर। लेकिन ड्राइव या किसी के थ्रू अभी करना थोड़ा मुश्किल काम है, बराबर। कब आ रहे हो कॉलेज, बोलो?
प्लान सर करो। सैटरडे। सैटरडे अभी इस सैटरडे शायद मैं यहाँ पे रहूँगा, लेकिन वो भी बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी हर सैटरडे से मैं वो जो एम्बेडेड कंपनी की मैं जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे सिखाने के लिए जाने वाला हूँ। वहाँ पे मैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट की तरह मुझे इनवाइट किया गया है। उन लोगों को मुझे एम्बेडेड के ऊपर ट्रेनिंग देनी है और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी उनको करके देने हैं, वैसी बात है। तो सैटरडे इस बार अगर मानो कि मैं फ्री होऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, नहीं तो फिर बाद में सैटरडे को आना है तो पक्का नहीं मिलूंगा, वैसी बात हो गई। सर ये आपके लैपटॉप में है ना? मेरे लैपटॉप पे है। नहीं सर, मतलब नॉर्मल वर्किंग डेज में तो क्या था कि लेक्चर्स रहते हैं, तो इसलिए आना जाना थोड़ा वो हो सकता है। तो फिर आप तो हाँ, विद्यानगर या आनंद रहते हैं ना, तो मतलब मैं वहां आ सकती हूँ संडे के दिन भी। तो भी ठीक है, वो करो, बराबर ना, वो भी कर हाँ, सकते फिर हैं। फिर तो मतलब ऐसे संडे ही कैसे, पॉसिबल है हाँ, ना? कैसे भी करके ले लो, वो अच्छी बात है। और मंथन और अनुज, अगर रास्ता ना मिले तो मैं तुम दोनों को भी बोलूंगा कि वो जियो वाला प्लान लेके एक बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, बराबर। और मैं ट्राई करूंगा कि एक मंथ के अंदर में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके करवा के आपको दिखा दूँ, प्रोसेस दिखा दूँ। तो वो प्लान आपका फेल नहीं जाएगा। एक महीने के लिए वो 250 रुपये वाला प्लान करवा दो, सारे सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। नो सर, वो प्लान की कोई नहीं है, मतलब प्लान तो करवा ही लेंगे। बट हाँ, क्या है कि अभी 2-3 दिन थे क्या, वो थोड़ा एग्जाम का था। नहीं नहीं, मैं तुरंत नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम को पहले कंसंट्रेट करो, बराबर। एग्जाम तो देनी ही है हमको। लेकिन उसके बाद आके ले जाओ, ये मैं बोल रहा हूँ। ले, या तो डाउनलोड कर लो, ले जाओ, नहीं तो डाउनलोड कर लो। जैसे प्लान करवा दिया हो तो यानी तुम रात को भी लैपटॉप को डाउनलोड करके रख के सो सकते हो, बराबर। हो सकता है ना ऐसा, यस सर, पॉसिबल। बराबर। और यस सर। उसके लिए डाउनलोड करने के लिए क्या है कि आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए सीधा नहीं होगा। तो अकाउंट के अंदर वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तो ऑप्शन था, स्टूडेंट का है कि नहीं मालूम नहीं, देख लो, होगा ही। और नहीं तो आप झूठा मूठा भी दे सकते हो, यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि झूठी इंफॉर्मेशन दो, लेकिन वो आपके ऊपर है, बराबर। तो अगर हो सकता है तो डाउनलोड कर लो, मैं यही बोलूँगा, बराबर। और वो लोग श्योर। क्या है कि काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी जो डाउनलोड करने के लिए देते हैं ना, तो रोल के सामने आपका ऑफिशियल अकाउंट चाहिए। तो हो सकता है कि जब आप अपना अकाउंट लिखो तो वो दिखा दे कि वो ये प्रोफेसर नहीं है, तो शायद आपको डाउनलोड ना भी करने दे। एक बार ट्राई तो करो, अगर हो जाता है तो फिर यानी आप दोनों भी फायदा उठा सकते हो। और रिया, तुमको भी डाउनलोड करना है तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 5.7 GB का सॉफ्टवेयर है, इसके लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ आओगे मेरे पास तो जो भी दूसरी चीज़ें मेरे पास STM रिलेटेड पड़ी हुई है पुरानी, वो मैं आपको दे दूंगा, तो दोनों फायदे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है रिया क्या बोल रहा हूँ? यस सर, फ्री यहाँ आउट, मतलब फ्री, कॉलेज के। यहाँ यानी कहीं पे भी, घर पे या यहाँ पे, डाउनलोड ओके की सर। जगह मुझे मिलना इट्स अ बेटर ऑप्शन, ताकि मैं डाउनलोड करे बगैर आपको पुराना वर्जन दे पाऊँ। मैंने भी ये जो 5.7 GB का डाउनलोड किया है वो पुराना वर्जन है, अभी लेटेस्ट जो है वो तो इससे भी बड़ा है। वो कुछ यानी 7 GB से ऊपर वाला है, बराबर। ये बोलना मैं भी भूल गया, अभी मैं लिंक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप यानी डाउनलोड में जाओगे तो तो यानी एक एक वर्जन पिछला लेना है, यानी 14 लिखा होगा उसकी जगह 13, 14 यानी 1.4 और 13 यानी 1.3। तो 1.3 वाला वर्जन आपको डाउनलोड करना है, तो 5.7 में होगा, नहीं तो फिर उससे ज़्यादा भी होगा, बराबर। और अल्टीमेटली दिस थिंग्स आर गोइंग टू बिहेव सिमिलरली। ओनली थिंग इज सम सॉर्ट्स, some bugs may have sorted, may means may be actually solved by the company, and we may never be facing those problems, means those bugs. So it's comfortable to work with any kind of, with any version of the software, right? तो पुराने से भी पुराना लोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराने में जाने में यानी इतना ज़्यादा कम नहीं होता है, 5 पॉइंट की अराउंड ही रहता है। तो जो 13 वाला मैंने बोला था 1.3 वर्जन, वो डाउनलोड कर लो। चलो जाने दो, वो बात कैसे भी हैंडल हो सकती है, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। कैसे भी करके मेरा बोलने का मतलब यही है कि डाउनलोड करो,
और इसके ऊपर वर्क शुरू कर दो, तभी इसका कुछ मीनिंग है, उसके बगैर कोई मीनिंग नहीं है, बराबर। और वही कंपनी मुझे यानी जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, मैंने आपको बोला अभी, वही मुझे यानी ये FPGA का बोर्ड वगैरह भी देने वाली है सेपरेट, ये बीगल बोर्ड भी देने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो यानी सिलेबस में है, लेकिन फिलहाल हमारे पास जिसके बोर्ड नहीं है, वो मैं उनकी वजह से ही आपको दिखा पाऊँगा। सो वो एक अच्छी चीज़ उन्होंने की, बराबर। हमारे पास FPGA का बोर्ड है, लेकिन एक ही है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का बोर्ड है, उसमें से कुछ पिंस नहीं निकल सकती है, वैसी है। जबकि वो जहाँ वहाँ से जो लाऊंगा वो यानी एकदम हमारा नॉर्मल कंट्रोलर का कार्ड रहता है ना, वैसा ही होगा, बराबर। चलो वो प्रैक्टिकल चीज़ें बाद में देखेंगे। तो मैंने अभी लास्ट में ये बोला कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? Yes, sir. It will create a delay for 100 nanoseconds. Yes, yes, very easy syntax, right? Wait for 100 nanosecond, लिख दिया, बात खत्म। फिर a इक्वल टू 0, बराबर, और b इक्वल टू 1। तो मैंने इनपुट्स कौन से दिए हैं? 0 और 1 दिए हैं। वापिस मैं 100 नैनोसेकेंड के लिए वेट कर रहा हूँ, बराबर। वापिस ये प्रोसेस वाली वेट है, बराबर, वो कर रहा हूँ और प्रोसेस को एंड कर रहा हूँ। ओके, चलो देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये और TB वाला मैं कर रहा हूँ, बराबर। कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फाइल ओपन है, तो यहाँ पढ़ लो, ये और TB वाला है। चलो इसमें तो कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया। अभी बिहेवियर को सिमुलेट करेंगे। यानी वही विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। देखो A, B और G देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो? Yes, sir. A, B और G। यस आउटपुट क्या आ रहा है? 0 1 0। 0. क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए 0. ना, बराबर। 0, हाँ, आउटपुट 0 ही आना चाहिए। 0 और 1 इनपुट के लिए आउटपुट 0 ही आना चाहिए। तो ये बराबर हो रहा है। देखो ये रन करूंगा तो भी वही चीज आने वाली है, लेकिन अभी वापिस इसको बंद कर देता हूँ। अगली बार आपको याद है ना क्या किया था? यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने सेट किया था फोर्स कांस्टेंट, बराबर, ये करके हमने किया था। इस बार ये इनपुट देने वाले कौन है? हमारी फाइल है। अभी इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि यही फाइल दे रही है, बराबर। यहाँ पे जो मेरे कोड है, कहाँ है? ये रहे। उसमें मैं एंड की जगह पे और कर दूंगा तो आउटपुट अभी जो 0 आ रहा था वो मुझे 1 मिलेगा, हाँ या ना? यस Yes, sir. बराबर। चलो वापिस इसको मैं रन करता हूँ और अभी वापिस और TB ले रहा हूँ और देखो क्या आया, और किया तो 0 1 1, बराबर। तो इज इट प्रूवन नाउ दैट दिस इज एक्चुअली हैंडल्ड बाय द टेस्ट बेंच फाइल रादर देन? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके। यस Yes, sir. तो अभी इसी प्रोसेस के अंदर मैं ये वेट 100 सेकंड नैनोसेकंड जो मैंने लिखा है उसकी जगह यानी एंड कर दिया है, उसकी जगह पे मैं ये इनपुट बदल भी सकता हूँ। 2-3 बार बदलता हूँ। चलो इतना काफी है। पहली बार हमने क्या इनपुट दिया है ओरिंग के लिए? 0 1। 0 हाँ, 1. हाँ यहीं से है, बराबर। 0 1, बराबर। पहली बार चलो 0 0 दे देते हैं, फिर 0 1 देते हैं, फिर 1 0 देते हैं, 1 0, और उसके बाद 1 1 देते हैं, बराबर है। यस सर। Yes, sir. यस।
अभी वापिस इसको रन करते हैं। सबसे पहला 0 0 था ना कि 1 1 था? 0 0। नहीं, ये तो लास्ट वाला आ गया। ये कहाँ से शुरू हुआ है? अच्छा, लास्ट वाला इस वजह से आ गया कि ब्रेक पॉइंट नहीं रखा है। सर 100 नैनो सेकंड तो पहले बहुत वाले जल्दी में बीत मुझे जाएंगे, तो हमें लास्ट में दिखेगा ना। नहीं, रन कर देता है। बात ये इतना हुआ है कि ये हाँ लास्ट तक मतलब रन पूरा कर रन देता होके है। लास्ट वाला अकेला रह जाएगा ना। हाँ, तो अभी यहाँ पे मुझे ब्रेक पॉइंट रखना है। कहाँ पे? कहीं पे भी यहाँ पे रख देता हूँ। चलो, टॉगल बुकमार्क कहाँ गया? एक मिनट। अभी बुक मार्क ही आ रहा है, ये ब्रेक पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है? सर अगर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डिले बढ़ा दे, मतलब इतना जितना ह्यूमन आई को विजिबल हो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा है। ये यहाँ तक रन हो जाता है, कितना भी डिले मुकोगे ना, ये लास्ट तक रन हो जाता है। मेरा बोलने का मतलब ये है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये डिले कितना भी रखोगे, वो लास्ट तक रन हो रहा है। हाँ लास्ट तक रन हो रहा है, लेकिन डिले ज्यादा होगा तो हम देख पाएंगे ना चेंज होते हुए। देखो देखो, एक मिनट। गूगल बुकमार्क कैसे देख पाएंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि लास्ट लाइन तक रन हो ही रहा है यहाँ तक, तो बीच में कितना भी डिले रखे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सारी लाइन एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। चलो 1000 कर देते हैं। तुम्हारी बात भी सही हो सकती है, एक बार देख लेते हैं। चलो, हाँ, ये बंद करना भूल गया था, इस वजह से ये हुआ। चलो वापिस करेंगे। ओके, बराबर। अभी ये 0 0 आ रहा है। हाँ, हो सकता है तुम जो बोल रही थी ऐसा हो सकता है। चलो स्टेप में करते हैं। अभी ये देखो, दूसरे इनपुट पर आया है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, बराबर। b इक्वल टू 1। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलो, क्या आउटपुट आया? किस इनपुट के लिए हम देख रहे हैं अभी? 0 और 1। 0 और 1 जाना चाहिए। हाँ, अभी जाएगा, बराबर। 0 और 1 देखो, ये फाइल में गया। स्वाभाविक बात है कि ये जो फाइल है टेस्ट बेंच की, ये इसको सिग्नल भेज रही है, तो ये फाइल में अभी गया। अभी वापिस स्टेप करूंगा तो ऑरिंग होगा, और जी का डेटा अभी पहुंच गया होगा। देखो, जी का डेटा पहुंच गया। 0 1 के ऊपर 1 हो रहा है, बराबर है। यस सर। ओके। यस सर।
देखो एक दो बार मैं गलत हो जाऊं तो ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता है, हमारी भी काफ़ी सारी तकलीफें होती है, बराबर। कल डेरिवेशन के टाइम पे ये किया, ये 1000 की वजह से ये मत मानना कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता है, ऐसा कुछ मानते हो क्या आप लोग? अरे और नहीं सर सर, नहीं नहीं, ऐसा क्यों ऐसा कुछ मानेंगे। नहीं है। हाँ, यानी हम भी इंसान है, कभी कभी हमारा भेजा भी कुछ अलग ढंग से काम कर सकता है, तो उसके लिए तैयार रहो, बराबर। चलो आगे जाते हैं। कहाँ गया? ये रहा, देखो ये भी भूल जाता हूँ। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 अभी कहाँ जाएगा? हमारी मेन फाइल में जाएगा, बराबर बराबर, गया। और जी का आउटपुट मिल जाएगा। हमारा इनपुट कौन सा है? 1 0 है। चलो देख लेते हैं। इनपुट 1 0 आ गया और आउटपुट मेरा 1 मिल गया, बराबर है। आगे देखते हैं, वही चीज़ होने ही वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1 1 जी में गया, जी आउटपुट मिल गया, और 1 1 के ऊपर आउटपुट 1 मिल गया। अभी ऐसी कुछ यानी प्रोसीजर नहीं होती तो सोचो कि सिमुलेट करना कितना टीडियस जॉब होता। तो स्वाभाविक था कि ये सॉफ्टवेयर वालों को ये देना ही था। इस ऐसी कुछ फैसिलिटी के बगैर आप कुछ चेक कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते हो। हर बार ये इनपुट चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, खास करके जब ज़्यादा जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, बड़ी हो तब। और आगे जाके तो बड़ी बड़ी सर्किट ही हमको सिमुलेट करनी है, बराबर। कंट्रोलर के अंदर ALU ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अगर मानो कि ये नहीं दिया है तो कोई RTL इंजीनियर, मैंने बोला था ना RTL की जॉब होती है, RTL इंजीनियर कैसे चेक करेगा, कैसे वेरीफाई करेगा? वेरिफिकेशन की जॉब आती है, बराबर। वो कैसे करेगा? तो ये फैसिलिटी तो देनी ही थी। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम के अंदर मैंने पूछा था कि व्हाट आर द फैसिलिटीज गिवन इन केल फॉर डीबगिंग, तो वहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट और INI फाइल और लॉजिकल एनालाइजर वगैरह की जैसे आपने बात की थी, उस तरह से ये एक फैसिलिटी जो हम FPGA के लिए यानी Xilinx ISE के सॉफ्टवेयर के लिए हम बात कर गए, वो कौन सी है? टेस्ट बेंच की, बराबर। टेस्ट बैच। टेस्ट बेंच एंड टेस्ट बेंच कमांड्स आर दी फर्स्ट फैसिलिटी वी हैव सीन। अभी टेस्ट बेंच के सारे कमांड अभी हमने पढ़े नहीं है, मैं अलग से नहीं सिखाऊंगा। जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे उस तरह से हमको यानी वो कमांड्स हमको समझ में आते जाएंगे, बराबर। दूसरी फैसिलिटी भी साथ में धीरे धीरे देखते जाएंगे, तो वो इकट्ठा करके आपको इस तरह के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। ओके, चलो अभी एक नई चीज आपको दिखाता हूँ। ये पहले खत्म हो गया 1 1 1, हाँ बराबर। चलो अभी सिमुलेशन बंद करता हूँ और इसके अंदर G1 वाली फाइल ले लेता हूँ, बराबर, जहाँ पे मेरा एक्चुअल कोडिंग है। अब टूल्स में जाओ, ये चीज़ें याद नहीं रहती है तो लिख के रखो, बराबर। याद अभी भी लिख सकते हो या तो वीडियो डाउनलोड करके बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद आप स्कीमेटिक व्यूअर में जाओ। ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे पढ़नी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं स्कीमेटिक व्यूअर दिखा रहा हूँ। अभी इसमें दो चीज़ें, RTL और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाला व्यू आप देखोगे, टेक्नोलॉजी वाला स्कीमेटिक देखोगे तो आपको LUTs दिखाई देंगे, लुकअप टेबल्स। और RTL वाला देखोगे तो गेट लेवल का सिमुलेशन आपको दिखाई देगा। पहले RTL पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है, बराबर। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको स्कीमेटिक में चाहिए। तो मुझे ये G1 चाहिए तो मैंने ये ऐड कर दिया, बराबर। फिर मुझे सिग्नल चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया ABC का सिग्नल, ABG का सिग्नल ऐड कर दिया, बराबर। इसी तरह से टॉप लेवल पॉट्स अभी रहने देते हैं, इसका मीनिंग भी समझ में आएगा, पहले खाली देख लो। अभी क्रिएट स्कीमेटिक देखो, तो आपके FPGA के अंदर इस तरह से चीज अरेंज हुई है। अभी याद है ना, हमने और गेट किया था, एंड गेट नहीं है,
तो इसलिए बीच में और गेट बन के आ गया। देखा क्या आपने, हाँ या ना? यस सर। बराबर। Yes, अभी sir. स्कीमेटिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलो, यहाँ पे और की जगह पे एक्स नॉर लिखते हैं। हाँ, एक्स नॉर इसके अंदर अवेलेबल है, एक्स नॉर भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो टूल्स में गए, स्कीमेटिक के अंदर आरटीएल में गए, देखो ये क्या है, ये और है, एक्स और है, एक्स और का है, और ये इन्वर्ट करके लगा दिया, बना दिया इसको एक्स नॉर। इस तरह का स्कीमेटिक अंदर बना हुआ है, बराबर है। तो अगर अंदर क्या बन रहा है वो आपको देखना है तो इस प्रोसीजर से आप जा सकते हो। अभी यही चीज वापस करेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे, बराबर। एक से ज्यादा कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। चलो क्रिएट करते हैं। देखो अभी ये डायग्राम किस तरह से आया है वो ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलयूटी वगैरह का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ही पता है, ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि कुछ सर्किट अंदर बन रही है कोड के हिसाब से, हाँ या ना? Yes, sir. बराबर। यस। अभी अभी इतना समझना ही काफ़ी है। तो आगे जाके क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे एग्जाम के अंदर, जब हम सीखेंगे तब, बराबर, कि भाई ये कोड दिया गया है, इसकी सर्किट ड्रॉ करो, या तो सर्किट दी गई है इसके कोड लिखो, बराबर। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम प्रोसेस लिख के क्लॉक को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और तब तक यानी आप दो तरह से वो चीज़ पढ़ सकते हो कि क्लॉक को कैसे आपको देखना है। या तो मंथन शेयर करेगा जैसे बात की हुई है, उसके अंदर से आप क्लॉक देख सकते हो, या तो फिर यहाँ पे लिखो कि क्लॉक इन एफपीजीए VHDL, हाउ टू क्रिएट क्लॉक प्रोसेस इन VHDL, बराबर। देखो प्रोसेस क्लॉक इज, बराबर। यहाँ पे क्लॉक के अलावा देखो दूसरे वेरिएबल भी है NRST, लेकिन प्रोसेस के अंदर हमने किसको लिया है, खाली क्लॉक को लिया, क्योंकि क्लॉक के रिलेटेड ये प्रोसेस है। ये आप यहीं आगे पढ़ोगे, ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो क्लॉक के ऊपर क्लॉक वाला जो प्रोग्रामिंग है, ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह बनाना या ऐसा कुछ भी, वो हम कल करेंगे, बराबर। और अगर पढ़ने से पहले, लेक्चर से पहले प्रिपेयर होना है तो इस तरह से आप यानी ऑनलाइन देख के या तो बुक में देख के कर सकते हो, बराबर। एक दूसरी भी अच्छी साइड में आपको दिखाता हूँ। ये ट्यूटोरियल पॉइंट्स दूसरी भी अच्छी चीज़ें सिखाता है, जैसे जावा या सी वगैरह वगैरह, बराबर। ट्यूटोरियल पॉइंट काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो VHDL कोड फॉर हाफ एडर, ये हाफ एडर बनाया है,
बराबर। अभी इतना तो पता चल रहा है, लाइब्रेरी IEEE क्या है, एंटिटी हाफ एडर क्या है, पोर्ट AB क्या है, सम कैरी, ये दो आउटपुट है। आप पढ़े हो ना हाफ एडर सर्किटरी? हाफ एडर सर्किटरी पढ़े हो ना? यस सर। हेलो, क्या यस होता सर। है अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, क्या होता है वो पूछता हूँ मैं, एग्जैक्टली नहीं कुछ पूछ रहा हूँ। अंदर क्या होता है एडर के अंदर, हाफ एडर फुल एडर के अंदर? किससे सिंथेसाइज करते हैं, किस चीज से सिंथेसाइज करते हैं? गेट्स। गेट्स। यस, गेट, बराबर। अभी आपको वो याद नहीं होगा कि एक्सोर गेट था या नॉर गेट था या नैंड गेट था, लेकिन ऐसा तो कुछ याद है ना कि वो होता है, बराबर। अभी ये कोड देख के भी आपको याद आ सकता है, बोलो कोड देख के बोलो क्या था। कोड देख के आप बोल सकते हो कि हाफ एडर में कौन कौन से गेट लगेंगे, एक्सोर और बराबर। एक्सोर और एंड। एंड, बराबर है। अभी इसको ड्रॉ कर, इसको देख के आप हाफ एडर की सर्किट ड्रॉ कर सकते हो? ये यस कोड सर। देख के आप हाफ एडर की सर्किट ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस इट्स सर। इजी। ए और बी इनपुट लेना यस है, सर। उसका एक्सोरिंग करूंगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो सम होगा, और इसका एंडिंग करूंगा और जो आउटपुट मिलेगा वो कैरी होगा, बराबर। ऐसा कुछ आप पढ़े थे, याद करने की कोशिश करना। तो यस यानी सर। ये तो सिंपल एग्जांपल है, इसके लिए इतना सिंपल हो गया। मैं एग्जाम में इतनी सिंपल सर्किट दूंगा ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कम मार्क के लिए सिंपल भी पूछूंगा, बराबर है। फर्स्ट इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं तभी पूछूंगा जब यानी हमारा इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगा। उसके एग्जाम के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा उसको मैं अगले या अगले के अगले लेक्चर में रिवील करूंगा, बराबर। लेकिन किस तरह से पढ़ना है, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो विदाउट मी, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट भी एक अच्छा ऑप्शन है, बराबर। कॉम्बिनेशनल सर्किट आप पढ़े हो, सीक्वेंशियल सर्किट आप पढ़े हो, बराबर। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो यानी समझ में आएगा, VHDL कोडिंग के लिए अच्छा सोर्स है, बराबर। याद रहेगा ट्यूटोरियल पॉइंट्स, tutorialpoint.com। हाँ, वो यस आगे सर। भी मैंने कभी ना कभी शेयर किया होगा। मैं सबसे बोलता हूँ ये वेबसाइट पे जाओ, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जॉब्स भी आपको जानने को मिलेगी, बराबर। हालांकि शायद ये इनकी job होगी। हाँ देखो, अबाउट कैरियर्स एट ट्यूटोरियल पॉइंट, ट्यूटोरियल पॉइंट में भी आप यानी इस तरह से ज्वाइन हो सकते हो। और ज़्यादातर ये जो जॉब होगी ना वो ऑफलाइन जॉब होगी, ऑनलाइन जॉब होगी, यानी आपको यानी कहीं पे फिजिकली जाना नहीं होगा। वो आप ये सब चीज़ें उनको करके दोगे, ट्यूटोरियल बना के दोगे तो पेमेंट करेंगे, उस तरह का कुछ होगा। लेकिन उसके लिए वो लोग कुछ यानी शायद क्वालिफिकेशन भी मांगेंगे, ऐसे खाली कोई भी इसमें जुड़ के ऐसा शुरू नहीं कर सकता है। मैंने कभी किया नहीं, ये मेरा अनुमान है, बराबर। लेकिन ये है, बराबर। देखो फ्री रिज्यूम सैंपल्स भी है, तो ये आप डाउनलोड करो, देखो ये कितने अच्छे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देखो ये सब चीज़ें देखनी शुरू कर दो। फिर उसके अलावा देखो UPSC IAS एग्जाम की भी बात है, बराबर। अभी इसमें गवर्नमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो तुम जो पूछ रहे थे उसको वो यहीं गूगल पे सर्च करो कि क्या पूछ रहे थे तुम, गेट एग्जामिनेशन। सो द गवर्नमेंट जॉब्स इन विच गेट एग्जामिनेशंस आर कंसिडर्ड, ऐसा सर्च करके देखो गूगल पे क्या आता है। इंडियन गवर्नमेंट जॉब और गुजरात गवर्नमेंट जॉब गिविंग रिक्रूटमेंट और रिक्रूटिंग, इंडियन गवर्नमेंट जॉब या तो गुजरात गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटिंग ऑन बेस ऑफ गेट स्कोर, ऐसा लिखोगे तो यानी आपको कुछ डेटा मिल जाएगा। इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए गूगल हमारे पास है, हमको लॉजिक बिल्डअप करना है। हालांकि आप मुझे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए भी झिझक मत करिएगा, अगर मुझको मालूम है तो मैं बोलूँगा, नहीं मालूम है तो ना बोल दूंगा, बराबर। हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस। ओके, यस सर। so with this now let me finish the lecture. Stop recording.